Assalamu alaikum. Dear students, for class 8th, today we are going to discuss a topic that is non-conventional source of energy. As you know that we are studying the energy sources or energy resources, and in this chapter we have already studied conventional source of energy. We were studying the conventional source of energy, and in this we have already studied the conventional sources like firewood, coal, petroleum, natural gas, etc, etc. And you know that these what are these conventional source of energy? These were actually the source of energy which were traditional, which we are using since long time. But the disadvantage of these conventional source of energy is that majority of them are pollutants, and most of them they are non-renewable, or most of them we can say are inexhaustible source of energy. These conventional source, मैं conventional source की बात कर रहा हूँ, ठीक? And today we are going to discuss a new source of energy, that is a non-conventional source of energy. See, what are these non-conventional source of energy? Non-conventional source of energy are simply those energy sources which are new, or we can say which have been developed recently, which have been developed recently, and they are having benefit, or we can say that they are having advantage over the conventional source of energy. Like these non-conventional source of energy, majority of them, we can say all of them, they are not pollutants. They do not pollute. They are non-pollutants. We can say they are non-pollutants, and they are also inexhaustible. Means they will never end. For example, non-conventional source like solar energy, wind energy, geothermal energy, nuclear energy, biogas, tidal energy, wave energy. Good. These are called as non-conventional source of energy. Like I said, that they have been developed recently, they are new, and in India, if we see, their contribution to energy needs is very less. But in developed countries like USA or UK, Netherlands, they contribute significantly to their energy needs. Good. And they have the, like I said that, like I mentioned, that they have the benefit that they are non-pollutants, and they are also inexhaustible. They will never end. Like you will see solar energy, it will never end. Wind energy, it will remain until there's earth. Geothermal energy, nuclear energy, biogas, wind energy, tidal energy, they are inexhaustible. Good. And today we are going to discuss two energy, two non-conventional source of energy. First, we will discuss solar energy. Solar energy. See, what is the solar energy actually? As you know that sun's heat and light energy, it can be felt by us every day. We every day we felt it. Every day we felt this sun's heat and light energy. Good. It's every time on the earth. Every time. Every second we can say. Our earth receives this solar energy. Good. And you know that energy trapped from the sun, it can be utilized in solar cells to produce electricity. Actually, how it is trapped, how this it is converted into electricity or electrical energy. Actually, solar cells are made. Solar cells, these are actually small cells, solar cells. They are joined together, they form solar panels. एंड दी सोलर पैनल्स, इनको एक जगह पे बहुत सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, और इस सन की जो एनर्जी है इसको ट्रैप किया जाता है. ठीक है ना. विद द हेल्प ऑफ द सोलर पैनल्स इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. इट्स कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, जिस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूज़ कर सकते हैं या डिफरेंट पर्पज. नॉट ओनली इलेक्ट्रिसिटी, इसको सोलर कुकर्स में, हीटर्स में या गीजर्स में यूज़ किया जा सकता है. गुड. सी the technology utilizing solar energy benefits a lot especially in tropical areas. जो हमारे tropical areas हैं. Good. tropical areas कौन से हैं? Mostly जो equatorial region है, equatorial region, Tropic of Cancer,
So this is Tropic of Cancer for example, this is Tropic of Capricorn, ठीक है ना. जो इसके बीच वाला एरिया रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच वाला जो एरिया रहता है ये इसे कहते हैं हम ट्रॉपिकल एरियाज. ये ट्रॉपिकल एरियाज है. और जो कंट्रीज इस इक्वेटर पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होती है तो उन्हें कह सकते हैं हम ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है ना. तो यहाँ पे जो सोलर एनर्जी जो है, हीट जो सन की जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना. तो स्पेशली आप देखोगे इंडिया में, कहाँ पे इंडिया जो है ना, इंडिया का बहुत सारा पोर्शन जो है वो जैसे मैंने पढ़ाया आपको, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. हाफ ऑफ द इंडिया इट लाइज बिलो दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिलो रहता है. तो इंडिया का जो इंडिया का मेजॉरिटी पोर्शन है तो दैट हैज़ द पोटेंशियल, ठीक है ना, दैट इज अ पोटेंशियल फॉर दिस सोलर एनर्जी. स्पेशली आप यहाँ पे देखोगे स्टेट्स लाइक राजस्थान, जहाँ पे जो डेजर्ट भी है, राजस्थान या गुजरात, राजस्थान एंड गुजरात, these two states especially have the potential of developing this solar energy, ठीक है ना. अगर आप इंडिया में आज भी देखोगे, जब जो स्टेट सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस करती है, इसके पहले नंबर पे राजस्थान ही आता है और दूसरे नंबर पे गुजरात आता है, ठीक. तो जैसे मैंने मेंशन किया यहाँ पे जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ठीक है ना, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान अफ्रीकन कंट्रीज बहुत सारी आती है इसमें, ठीक है ना. इन दे हैव द ह्यूज पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग दिस सोलर एनर्जी. गुड. इंडिया में मैंने मेंशन की दो स्टेट्स, इज राजस्थान एंड गुजरात. ये दो स्टेट जो है, राजस्थान इज नंबर 1 इन प्रोड्यूसिंग सोलर एनर्जी एंड गुजरात इज नंबर 2, ठीक है ना. ऑलमोस्ट अब हर स्टेट जो है डेवलप कर रही है सोलर एनर्जी. अच्छा, ठीक. अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है? इट्स यूज्ड इन सोलर हीटर्स, सोलर हीटर्स में इसका यूज होता है, ठीक है ना. सोलर कुकर्स में यूज होता है इसका. वी कैन कुक फूड विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी, ठीक. वी कैन हीट वाटर विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी. इट्स ऑल्सो यूज्ड इन कम्युनिटी लाइटिंग, कम्युनिटी लाइटिंग, ठीक है ना. जो कम्युनिटी लाइटिंग आप देखते हो स्पेशली शहरों में, आप जो स्ट्रीट लाइट्स देखते हो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो इन ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इसका यूज़ होता है. गुड. नाउ सी व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, ठीक. इसके एडवांटेज क्या है सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस? फर्स्ट ऑफ इट्स एडवांटेज इज दैट सोलर एनर्जी इट्स इनएग्जॉस्टेबल, इट्स इनएग्जॉस्टेबल, ठीक है ना. जब तक अर्थ रहेगी तब तक जो है हम सोलर एनर्जी ट्रैप कर सकते हैं. ये कभी न ख़त्म होने वाला सोर्स है, ठीक है ना. हम जितना भी यूज़ करें इसका ये ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना. या जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने जो फॉसिल फ्यूल्स पढ़े, जितना जितना हम उनको यूज़ करते रहे, जो जितना जितना हम इनका यूज़ कर रहे हैं वो उतने इनकी क्वांटिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है. पेट्रोलियम, कोल, ठीक है ना, अगले 50 साल या आफ्टर 100 ईयर्स वो नहीं होंगे हमारे पास कोल और पेट्रोलियम. लेकिन सोलर एनर्जी क्या ये बेनिफिट है कि इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होगी ये, ठीक है ना. जितना भी इसका हम यूज़ कर लें ये ख़त्म नहीं होगी सोलर एनर्जी. एंड ऑल्सो दे आर नॉन पोल्यूटिंग सोर्सेज, ये नॉन पोल्यूटिंग सोर्स है सोलर एनर्जी जो नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है ना. इससे पोल्यूशन नहीं होती है. इसके डिसएडवांटेज की बात हम करें, ठीक है ना. इट्स एक्सपेंसिव टू सेटअप, ठीक है ना. जब हम एक बार लगाना होगा हमें तो ये एक्सपेंसिव है, ठीक है ना. लेकिन एक बार ये लग गया तो फिर इससे जो है कंटिन्यूसली एनर्जी हम जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इट्स एक्सपेंसिव टू सेटअप. गुड. एंड इट इज़ ऑल्सो ए डिफ्यूज्ड सोर्स, ये डिफ्यूज्ड सोर्स है, फैला हुआ है, हर अर्थ पे हर जगह पे मौजूद है, ठीक है ना. तो मेजॉरिटी ऑफ इट गेट्स वेस्टेड, ये जो है वेस्ट हो रहा है, मेजॉरिटी ऑफ इट गेट्स वेस्टेड. तो बहुत कम हम ट्रैप कर पा रहे हैं, ठीक है ना. इट इज़ डिफ्यूज्ड सोर्स, ये एक ही जगह पे नहीं पाया जाता है. इट इज़ एक्चुअली डिफ्यूज्ड, सो इट मेजॉरिटी ऑफ इट गेट्स वेस्टेड, ये वेस्ट होता है. तो ये पहला जो हमने इसमें पढ़ा नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में, इट वाज सोलर एनर्जी. नाउ सी सेकंड एनर्जी सोर्स जो हम पढ़ेंगे, इट इज विंड एनर्जी, ठीक है ना. सी विंड इज ऑल्सो एन इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी.
विंड जो है ये इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना। जो विंड मिल्स है दे हैव बीन एक्चुअली यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम्स इमोरियल, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनली बहुत टाइम से हम जो है विंड एनर्जी का यूज़ करते आ रहे हैं, स्पेशली जो ग्रेन्स है इनको ग्रिंड करने में यूज़ करते आ रहे हैं या लिफ्टिंग वाटर। बट हम ये नहीं कह सकते हैं ये ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते थे या एनर्जी जनरेट नहीं कर पाते थे, ठीक है ना। नाउ इन दिस टाइम व्हाट वी डू इज हाई स्पीड विंड्स दे रोटेट द विंड मिल। ऐसी विंड मिल्स होती है जो विंड्स की स्पीड जो होती है इट शुड बी मोर देन 15 किलोमीटर्स पर आवर। 15 किलोमीटर्स पर आवर जब विंड की स्पीड होगी तो ये विंड मिल जो है ये रोटेट होती है, ठीक है ना। दे आर कनेक्टेड टू द जनरेटर, ये जनरेटर से कनेक्ट होती है, इसका डायनेमो फिर इसकी वजह से मूव होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। यस, wind farms having cluster of such wind mills are located in coastal and mountain passes। देखो बेटा ये कहाँ पे विंड मिल जो है कहाँ पे लगाई जाती है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा ना ये अर्थ पे हर जगह पे नहीं होती है, विंड फास्ट हर जगह पे अर्थ पे नहीं होती है। तो दो प्लेसेस जो है जहाँ पे विंड ऑलमोस्ट हर टाइम होती है, ठीक है ना। वन इज कोस्टल रीजन्स, जो कोस्ट होते हैं कोस्टल रीजन्स, सीज या ओशंस के पास, ठीक है ना। एंड ऑल्सो माउंटेन पासेस, माउंटेन पास मीन्स जो माउंटेन्स के बीच जगह होती है, बानीहाल पास है या अर्थ पे बहुत सारे पासेस है माउंटेन्स में, या माउंटेन वैली ब्रीज, माउंटेन और वैली के दरमियान कंटिन्यूसली विंड बहती रहती है, ठीक है ना। तो इन दो जगहों पे हम यूजुअली जो है ये विंड मिल जो है सेटअप करते हैं। इट इज कोस्टल एरियाज एंड माउंटेन पासेस। गुड, यस। विंड फार्म जो है ना कहाँ पे ज्यादातर इस टाइम जो पाए जाते हैं, विंड फार्म्स आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, इट्स वन ऑफ द कंट्री, इट्स प्रॉब्ली इन यूरोप, यस, जर्मनी, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड स्पेन। दो मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज दे आर यूरोपियन कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम यूएसए। तो बेटा क्या कहा मैंने यहाँ पे, दीज विंड फार्म्स, जो ये विंड फार्म्स है दे आर फाउंड इन नीदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए एंड स्पेन, ठीक है ना। एंड एक्चुअली दीज कंट्रीज दे आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है ना। इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा विंड से जो एनर्जी है प्रोड्यूस की जाती है। गुड, यस। अच्छा, अगर हम इसकी विंड एनर्जी की जो हम अगर आप देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की अगर हम इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो पहली बात सिंपली जैसे मैंने कहा ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दे विल बी नॉन पोल्यूटिंग। ऑल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी दे आर नॉन पोल्यूटिंग, ये नॉन पोल्यूटिंग है, ठीक है ना। एंड अनदर एडवांटेज इज लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप। तो पहले भी सेटअप करने में थोड़ा कॉस्ट लगता है, लेकिन जब एक बार सेटअप हो गया ये तो फिर जो इससे जो हमें एनर्जी की जो एनर्जी प्रोडक्शन होती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, वो कॉस्टली नहीं होती है फिर, ठीक है ना। एंड इट इज ऑल्सो सेफ एंड क्लीन, ये सेफ भी होती है एंड क्लीन भी होती है। ये जनरली सभी का एडवांटेज है, जो सभी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है दे आर सेफ एंड क्लीन, ठीक है ना। बट डिसएडवांटेज क्या है इसका, जो विंड एनर्जी है इसका डिसएडवांटेज क्या है प्रोड्यूस करने का, जो नॉइज पोल्यूशन होती है इससे बहुत ज़्यादा होती है। नॉइज पोल्यूशन इसको हम जो रेजिडेंशियल एरियाज होंगे, सिटीज़ होंगी फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, जहाँ पे लोग रहते होंगे तो वहाँ पे इसको नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा नॉइज जो है प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। दिस नॉइज दिस इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग फॉर एक्चुअली बर्ड्स के लिए जो ये नॉइज होती है ये डिस्टर्बिंग होती है, ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो डिसरप्ट्स या डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, ठीक है। जो रेडियो और टीवी सिग्नल होती है इनको भी जो है ये डिस्टर्ब करती है। ये जो विंड मिल्स होती है जब ये रोटेट करती है तो इससे एक तो इससे क्या होता है कि एक तो साउंड आती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, तो नॉइज पोल्यूशन होती है इसकी वजह से, ठीक है ना। दूसरा मैंने कहा विंड मिल्स जो है, विंड मिल्स पहले दे आर कॉस्टली सेटअप, ये कॉस्टली सेटअप, लेकिन एक बार जब सेटअप हो गई तो फिर हमें जो एनर्जी मिलती है पर यूनिट तो वो इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, ठीक है ना। तो इट्स ऑल्सो हार्मफुल टू बर्ड्स के लिए, जैसे मैंने कहा ये हार्मफुल है,
ठीक है ना। एंड इट ऑल्सो डिस्टर्ब्स रेडियो एंड टीवी सिग्नल्स, जो रेडियो टीवी सिग्नल्स है, जो सिग्नल्स आती है, जो रिसेप्शन होती है इसकी, इसको भी जो है ये डिस्टर्ब करती है, ठीक है ना। तो आज हमने ये दो एनर्जी सोर्स पढ़े, वन इज सोलर एनर्जी एंड सेकंड इज विंड एनर्जी, ठीक है ना। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, गुड, और हमने इनके एडवांटेज भी पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े, ठीक है ना, और किन किन कंट्रीज में इनका स्कोप है, ठीक है ना, वो भी हमने पढ़ा। जैसे सोलर एनर्जी का मैंने कहा कहाँ पे ज़्यादा स्कोप है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ठीक है ना, वहाँ पे इनका ज़्यादा स्कोप है। और जो विंड एनर्जी है, जैसे मैंने कहा अभी, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा ये इस टाइम प्रोड्यूस की जाती है, और यूएसए जो है उसमें भी प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जो नए बाकी रह गए वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।